Hello, my dear students. This is Garima ma'am, your ST teacher, and I hope you all are really excited for coming back to school. First of all, congratulations to all of you for getting promoted to class 9th. So, today in this video, we'll be starting our economics chapter. But before that, I would like to tell you one thing that till class 8th, you have studied a complete social studies, that means complete SST. But now this SST is divided into four parts: history, civics, geography, and economics. Coming to my subject, my topic for today, economics. Economics is a word made by the word economy, and the meaning of economy is a state of country in terms of production and consumption of goods and services and supply of money. किस तरह से एक कंट्री प्रोडक्शन और कंजम्पशन या गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लेवल पर खड़ी उतरती है और किस तरह की मनी सप्लाई है उस कंट्री की, वो सब इकोनॉमी में आता है. और इकोनॉमी से वर्ड बना इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, consumption and transfer of wealth. What's the need of studying economics? To understand what happens in market and economy. इकोनॉमी और मार्केट में, कंट्री की इकोनॉमी और मार्केट में क्या होता है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है. किस तरह से हर किसी को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट और यूज़ करना है वो पता चलता है. डिसीजन मेकिंग, डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है, और कंसर्न विद ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की किस तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रखने हैं और उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है, ये सब किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर. So the economics chapters to be done by you people for the whole year are story of village Palampur, people as resource, poverty as a challenge, and food security in India. But today we'll be doing for very first chapter, the story of village Palampur. Chapter 1, the story of village Palampur. But Palampur is not a proper village named here. Palampur is basically a hypothetical village. Hypothetical village means a village of imagination created just like any other village of India. Palampur can be any of the village of India. It's not typically the one. और एक बहुत small village consider किया जाता है, पालमपुर का example दिया जाता है. चैप्टर के अंदर it is mentioned that this village has 450 families and 80 families are of upper caste and have majority of land. Main activity of Palampur pursued by people is agriculture. There are some other small scale activities also like dairy, transport, small scale manufacturing, etc. It is a small village which is well connected with neighboring villages and towns like Raiganj. Raiganj का नाम आप बहुत commonly सुनेंगे. Transport facilities include like bullock carts, tongas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors and trucks. This village has two primary and one high school and also has a primary health center and one private dispensary. Please note this. See, I have written page numbers on the very left. If you want to note these things as notes for you people, you can note it in the same sequence. So let me start the topic with production. Production, but what is production? Production is basically conversion of raw material into finished good. Example, flour to a chapati. Let me tell you the meaning of finished good here. What is a finished good? A product which is ready to use by a consumer. जो consumer directly use करने को ready होता है, जो product सिर्फ consumer से consume होना है, that is finished good. जैसे कि आटे से गेहूँ, पहले गेहूँ उगेगी, गेहूँ से आटा बनेगा, आटे से उसके चपाती बनेगी, तो चपाती here is finished good. In other words, it is an activity that involves production of good or service that a person needs to live his life. There are various factors of production. The factors of production are divided into four parts. What are those four parts? Land, labor, physical capital and human capital. बच्चे, what is land? ज़मीन, natural resource जो fixed है, जो change नहीं हो सकता. Labor, मेंटल और फिजिकल एफर्ट, एक इंसान के द्वारा, ह्यूमन बीइंग ने जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट डाला है प्रोडक्शन के टाइम पे या प्रोडक्शन के लिए, दैट इज नोन एज लेबर. फिजिकल कैपिटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
जिस जिस तरह की इनपुट्स की ज़रूरत है हर स्टेज पर, वो क्या कहलाती है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो हिस्सों में बढ़ती है आगे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को बेसिकली जो फिक्स रहती है दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन वेरियस टाइम्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। जैसे टूल्स, मशीन्स, एक चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाई है, उस फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें आप बार बार यूज़ करेंगे हर प्रोडक्शन के लिए, नए ऑर्डर के लिए क्या क्या चीज़ें रिपीट आएंगी और क्या वही पुरानी यूज़ होंगी। तो पुरानी यूज़ जो होंगी वो फिक्स्ड कैपिटल, जो हर बार चेंज होंगी दैट इज वर्किंग कैपिटल। पुरानी यूज़ होने वाले में जैसे कि टूल्स, मशीन्स, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ऑर्डर के लिए के बाद जब दूसरा ऑर्डर आएगा तो आप नई मशीन परचेज करेंगे, नए टूल्स परचेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप नया क्या लाएंगे? रॉ मटेरियल नया आएगा, या फिर पैसा दोबारा यूज़ करना पड़ेगा रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, वो क्या कहलाएगी? वर्किंग कैपिटल। तो मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और लास्ट है ह्यूमन कैपिटल, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर नॉलेज के साथ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को, तीनों चारों चीज़ों को किस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके अरेंज करना है, वो अरेंज करने का काम किसका है? ह्यूमन कैपिटल। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर, तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आता है दैट लैंड इज फिक्स्ड। नॉट ओनली इन पालमपुर, लैंड इज ऑलवेज फिक्स्ड ईच एंड एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी प्लेस। फार्मिंग इज द बेसिक एक्टिविटी बट लैंड इज फिक्स्ड। लैंड का जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैक्सिमम कुछ वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जा सकता है कल्टिवेबल लैंड में। कल्टिवेबल लैंड जिसके ऊपर आप कुछ ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपको इन रिटर्न प्रोड्यूस मिल सकती है। नेक्स्ट कम्स क्रॉप सीजन इन पालमपुर। पालमपुर में क्रॉप सीजन क्या क्या है? खारिफ और राबी। शायद ये आपने 8th में भी पढ़ा हो कि रेनी सीजन के टाइम पर जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो खारिफ क्रॉप्स होते हैं, और उस सीज़न को खारिफ सीज़न बोला जाता है, जिसके अंदर ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। और विंटर के टाइम पर या फिर ड्राई सीजन के टाइम पर जो ग्रो करते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वीट एंड शुगर के। क्रॉपिंग पैटर्न अगर मैं बात करूं पालमपुर के, तो पालमपुर के अंदर बताने से पहले मैं आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताऊं। क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह के होते हैं, सिंगल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। सिंगल क्रॉपिंग होता है जब एक सेम पीस ऑफ लैंड पर एक साल के अंदर आप सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं, दैट इज सिंगल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग जब सेम पीस ऑफ लैंड पर सेम ईयर में 2 क्रॉप्स, और मोर देन 2 क्रॉप्स या मोर देन 3 क्रॉप्स मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग इज द मेथड यूज्ड इन पालमपुर फॉर क्रॉपिंग। नाउ कम्स द फार्मिंग मेथड्स। फार्मिंग मेथड्स के बारे में बात करूँ मैं, तो फार्मिंग मेथड्स 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आता है पेयर ऑफ बलक्स, जैसे बैलों के जो 2 बैल हैं उनके साथ प्लोइंग वगैरह करना, उनको लेके कुओं से पानी निकाल कर इरिगेशन करना, वुडन टूल्स को यूज़ करना, बुलक कार्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना, और ऑर्गेनिक मन्योर। ऑर्गेनिक मन्योर का मतलब हमें पता है कि घर के वेस्ट और ये जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो मन्योर बनाया जाता है वो ट्रेडिशनल मेथड में आएगा। बट नाउ कम्स मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, जो अच्छी प्रोड्यूस देते हैं वो आते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना। Pesticides and insecticides are also be used to kill pests and insects that are destroying the crop. Electricity and machinery is properly used. Tubewells and canals used for irrigation. And again, modern tools are used. Farming methods की अगर मैं बात करूँ तो traditional method gives low productivity and modern methods give high productivity. And the farming method that is used in Palampur is modern farming method. Next come our topic, yield. What is a yield? Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. And methods to increase these the yields are adoption of multiple farming. You have to adopt multiple farming and modern farming method. Now if I talk about electricity in Palampur, electricity, there's a ample supply of electricity in Palampur. Each and every house of the village has electricity supply. Electricity helps in irrigation from tube wells in spite of Persian wheels. Persian wheels is a traditional method of irrigation used. Electric run tube wells have more capacity than Persian wheels and whole society from darkness to light. This leads to
a path where the whole society moves from darkness to light. Green Revolution and Palampur. It's not basically linked with Palampur. Green Revolution was, started in 1960s and basically in the states of Punjab, Haryana, and Western UP. This was revolution brought about in the field of agriculture by using HYV seeds, fertilizers, irrigation, proper irrigation, pesticides, insecticides. There are many advantages of using green revolution, advantages of pursuing green revolution, that high yield due to high yielding variety seeds, that we get high yield due to high yielding variety of seeds. Use of machines such as tractors have made plowing and harvesting faster and easier. Pesticides and insecticides are able to protect the crop from pest and insects, so there is no loss because of all this. Higher yields enable farmers to sell surplus food in market and also to earn more money, and a good irrigation system can enhance crop production. There are many disadvantages of green revolution too. A coin has two sides, has heads and tails. Likewise, everything has two sides, positive and negative. Disadvantages of green revolution: loss of soil fertility due to increased use of fertilizers. Continuous use of groundwater for tube wells has reduced water table. Environmental resources like fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. पानी ग्राउंड वाटर लेवल जो पानी का है, पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको दोबारा रीस्टोर करना बहुत मुश्किल है अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है. Green revolution enhanced the use of chemical fertilizers, and these chemical fertilizers do, these chemical fertilizers get dissolved in groundwater and then polluted. Also, these insecticides and pesticides kill some bacteria and microorganism which is useful for the soil, and increased use of fertilizers can also make soil alkaline. Now comes what variety of farmers are there in Palampur. Palampur has three types of farmers: small farmers, medium farmers, large farmers. Small farmers, they have their own land, very small piece of land, and they cultivate their own land. Medium farmers and land farmers, they hire laborers, both of them, and they give wages in cash or kind. The employment duration is very long, but wages as compared to the duration of employment, duration of work are very less. Now, from where do these farmers get capital? What is capital? Capital is basically the sum amount used for setting up of a business or setting up of anything. जो स्टार्टिंग में पैसा चाहिए होता है, दैट इज कैपिटल. स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स कहाँ से करते हैं? ये मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से मनी बोरो करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं इन रिटर्न. लोन रीपेमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है और ये डेट ट्रैप में भी कई बार फंस जाते हैं. व्हाट इज डेट ट्रैप? डेट ट्रैप इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्मॉल फार्मर्स. बेसिकली होता क्या है, डेट इज कर्ज, ट्रैप इज जाल, कर्ज का जाल. जिस तरह से क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया, उसका टाइम खत्म हो रहा है या उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है या इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो दूसरे लेंडर से क्या किया, अगेन लोन लिया, इसका लोन रीपे किया और उसका इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से. तो इस तरह से कर्ज जाल में फंसने का वाला काम होता है डेट ट्रैप. नाउ कम्स लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स. लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स क्या करते हैं, ये अपनी पुराने सेव मनी को यूज़ करते हैं. ये स्मॉल फार्मर्स को मनी लेंड करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं इन रिटर्न, और फिर क्या करते हैं, कैटल्स बाय करते हैं, ट्रैक्टर बाय करते हैं और शॉप्स वगैरह सेटअप करते हैं. अब क्या होता है, जो सरप्लस बच जाता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, वो क्या करते हैं स्मॉल फार्मर्स बेसिकली अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए वो फैमिली में यूज़ करते हैं उसको, और लार्ज और मीडियम फार्मर्स क्या करते हैं, सरप्लस को मार्केट में सेल कर देते हैं. अब क्या है, क्या लैंड बचेगी? विल दिस लैंड सस्टेन? क्या फ्यूचर के लिए बच पाएगी? नो, बिकॉज क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड. फर्टिलिटी जो है, सॉइल फर्टिलिटी वो ख़त्म होती जा रही है, और ग्राउंड वाटर टेबल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट topic of this chapter, that there are some non-farming activities in Palampur also. In the very beginning of this chapter I told you about some of them. Now I'm explaining these. The first one is dairy farming. Dairy farming क्या होता है? डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर की फैमिलीज़ के लिए.
ये लोग क्या करते हैं, मिल्क जो है नियर बाय विलेजेस में जाकर सेल करते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं रायगंज में। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे वो और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला है डेयरी फार्मिंग, दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल स्केल पर, और ये सिंपल प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर होती कहाँ पे है, घर पे। और इनके साथ लेबर कौन है, अपनी फैमिली के मेंबर्स इनके अपने लेबर हैं। थर्ड कैटेगरी है शॉपकीपर्स की। ये कुछ लोग ही हैं, शॉपकीपिंग ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। ये क्या करते हैं, गुड्स को होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और उसको विलेजेस में बेच देते हैं। और किस तरह के गुड्स हैं वो, राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल और सोप। लास्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट बढ़ रही है, वैरायटी ऑफ व्हीकल सामने आ रही है। मैंने पहले भी बताया, बोगीज, बला कार्ट, स्ट्रॉन्गास, ये सब सामने आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, पालमपुर को रायगंज से ज्वाइन करते हैं। गुड्स और लोग दोनों को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So my dear students, your chapter is finished right here. I know it's really an easy chapter. Hope you people will be able to summarize and memorize this chapter. Stay safe, stay at home, and yes, we are always there for you people. Stay alert for the next video. Thank you. Keep waiting.